Hello children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is Indian National Movement. And what we are going to read in this chapter about the rise of Indian nationalism, the first phase of Indian national movement, the next phase of Indian national movement after 1919, and about a case study of Khilafat movement and non-cooperation, and Gandhi and the freedom movement. So the first of all we have to know about the rise of Indian nationalism. So in this chapter we will read about 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी उसके बाद जो है that was considered as the first war of independence. उसके बाद बहुत सारी ऐसी नेशनल वॉर हुई, ठीक है. कब क्या हुआ कि हमें ब्रिटिशर से आज़ादी मिली, वही हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. सो नेशनलिज्म क्या होती है बच्चे? नेशनलिज्म एक फीलिंग होती है वननेस की, हम सब भारतीय हैं, हम सब भाई भाई हैं. एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स होती है एक नेशन से जुड़े होने की, ठीक है. So, during the second half of the 19th century, nationalist spirit and consciousness began to take roots in the minds of the people of India. The Indians wanted to liberate themselves from the British rule and started on the long road of struggle for freedom. अब जो इंडियंस थे वो चाहते थे कि हमें ब्रिटिश रूल से आज़ादी चाहिए और इसके लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल की फ्रीडम के लिए, ठीक है. वो बहुत लंबा सफ़र पूरा उन्होंने तय किया. तो पहले क्या क्या उन्होंने किया वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. Early political associations. When national consciousness awakened among Indians, several associations were formed. जब इंडियंस को ये रियलाइज़ हुआ कि ब्रिटिशर्स जो हैं ये तो हम पर रूल कर रहे हैं, हमें अलग अलग करके ये हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं. तो जब उनके अंदर यूनिटी की फीलिंग आई तो उन्होंने बहुत सारी एसोसिएशन बनाई. द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन टू बी फॉर्म्ड वॉज द लैंड होल्डर सोसाइटी एट कैलकाटा इन 1838. In 1843, Bengal British India Society was formed, followed by the Madras Native Association and the Bombay Association in 1852. Yet there was not at all India organization. With the establishment of Indian National Congress in 1885, a platform was prepared for an organized नेशनल मूवमेंट. अब ये अलग अलग स्टेट की एसोसिएशन बनी थी, लेकिन जब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हुई थी तब तक इंडियंस को एक यूनाइटेड नेशनल प्लेटफॉर्म जो है नेशनल मूवमेंट के लिए वो नहीं मिल पा रहा था. अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है तो यहाँ से शुरुआत होती है फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट दैट goes long from 1885 to 1905. So, Indian National Congress, a need was felt for an all India organization which would ideally involve the masses and would be more assertive in पुटिंग फॉरवर्ड द डिमांड्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. कि इंडिया क्या कहना चाहता है. अब इंडिया के लोगों को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी जो इंडिया की डिमांड जो है वो गवर्नमेंट के आगे रख सके. कीपिंग दिस नेम इन माइंड, एस.एन. बनर्जी स्टार्टेड द ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस एट कैलकाटा इन 1883. अब किसने शुरुआत की है ऑल इंडिया एसोसिएशन? एस.एन. बनर्जी ने. At the same time, due to the efforts of A.O. Hume, a retired British civil services officer, along with that of some important Indian leaders, the Indian National Congress was set up in 1885. अब 1885 में एक A.O. Hume जो कि ब्रिटिश सिविल सर्विसेज ऑफिसर थे, बहुत सारे इंडियन नेशनल लीडर के साथ उन्होंने एक दूसरी एसोसिएशन स्टार्ट की जिसका नाम था द इंडियन नेशनल कांग्रेस. W.C. Banerjee. The first meeting was held at Calcutta under W.C. Banerjee. 72 delegates from all over the country attended the Congress, and some of the leaders who attended the meeting were Dadabhai Naoroji, S. Subramaniam Iyer, and Ganesh Agarkar, etc. Now, moderate phase. जो अर्ली स्टेज है कांग्रेस का दैट वाज कॉल्ड द मॉडरेट फेज एज द लीडर्स ऑफ दिस फेज पुट फॉरवर्ड मॉडरेट एंड रीजनेबल डिमांड्स ऑन द ब्रिटिश. ठीक है, ब्रिटिशर्स के सामने जो है वो रीजनेबल और मॉडरेट डिमांड रख रहे हैं. सो इस फेज को कहा गया मॉडरेट फेज. Prominent leaders of this time were Dadabhai Naoroji, R.C. Dutt, Gopal Krishan Gokhale, M.G. Ranade, etc. इनकी मेन डिमांड क्या थी? फर्स्ट, elected representatives in the provincial and central legislative councils, कि जो councils हैं वहाँ पर elected representative होने चाहिए.
recruit Indians for high government post and holding the Indian Civil Services examination in India, जो कि लंदन में होता था। इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम वो इंडिया में होना चाहिए और हाई गवर्नमेंट पोजीशन जो है वो इंडियन के लिए भी ओपन होनी चाहिए। रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मिलिट्री पर जो खर्चा किया जा रहा है वो उसमें कमी करनी चाहिए। एंड changes in government economic policies to encourage growth of Indian industries, और जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनमें कुछ चेंज करना होगा। इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़, उनको एनकरेज करना होगा। तो ये मॉडरेट लीडर जो थे ये डिमांड ब्रिटिशर्स के सामने रखते हैं। द मॉडरेट लीडर्स बिलीव दैट द ब्रिटिश हैड हाई रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम एंड जस्टिस। उनकी सोच ये थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके दिलों में एक हाई रिस्पेक्ट, वो उसको ऐसे समझते थे कि ब्रिटिशर्स को मतलब सबको इक्वल रखती है। ब्रिटिशर्स जो हैं वो जस्टिस और फ्रीडम के लिए बहुत ही अच्छा सोचती हैं। इट वॉज अ प्रिवलेंट व्यूज दैट द ब्रिटिश वुड लिसन टू द जस्ट डिमांड्स ऑफ द इंडियंस, हैंस अ नीड फॉर रेजिंग अवेयरनेस एंड एक्सप्रेसिंग द फीलिंग्स ऑफ द इंडियन पब्लिक वॉज स्ट्रांगली फेल्ट बाय द मॉडरेट लीडर। लेकिन ब्रिटिशर्स जो हैं इन बातों को इतना ध्यान से नहीं ले रही थी, इसीलिए मॉडरेट लीडर को ऐसा फील हुआ कि हमें अपनी बात जो है वो स्ट्रांगली रखनी होगी। यहाँ पर ग्रोथ होती है, अमर्ज होते हैं एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? इंडियन का वो ग्रुप जो कि मॉडरेट्स as mendicants and never approved of their methodology. Leaders like Bipin Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak and Lala Lajpat Rai led this group. Unlike the moderates, they were beginning to explore more radical method and objective. और इन मेंबर्स को कहा गया एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल्स। दे स्ट्रेस्ड ऑन सेल्फ रिलायंस। ये कहते थे हमें कोई चेंज नहीं चाहिए पॉलिसी में, हमें हमारी फ्रीडम चाहिए, हमें सेल्फ रिलायंस चाहिए, ठीक है, एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क चाहिए। दे आर्ग्यूड दैट पीपल मस्ट रिलाई ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ एंड मस्ट फाइट फॉर स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट, कि हमें अपनी सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। तो ये कौन से ग्रुप किससे थे? एक्सट्रीमिस्ट, दैट आर कॉल्ड रेडिकल्स, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाते थे कि हमें अपनी गवर्नमेंट चाहिए, हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हमें गवर्नमेंट में कोई हिस्सा नहीं चाहिए कि इंडियन पार्टिसिपेट करें, हमें अपना देश जो है वो फ्री चाहिए। और इनके मेथड थे जैसे कि स्ट्राइक्स, हड़ताल, बाइकट, स्वदेशी एंड पैसिव रेजिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। As the feeling of nationalism began to develop strongly among the Indians, British Viceroy Lord Curzon announced the partition of Bengal. Bengal of this time was a huge province of British India. Bengal उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया का बहुत ही एक बड़ा प्रोविंस था। It included Bihar and the parts of Odisha too. The British justified by saying that for administrative convenience they divided Bengal. और ब्रिटिशर्स का कहना था, जस्टिफिकेशन थी कि वो बंगाल को इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि उनको एडमिनिस्टर करना बंगाल को ईजी हो जाएगा क्योंकि वो उनका प्रोविंस है। हाउएवर रियल रीज़न क्या था कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही है उसको वीक कर देना, क्योंकि बंगाल में क्या थे? मुस्लिम्स थे। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे हिंदू और मुस्लिम के बीच में फूट डालना। The scheme was published in 1903 and finally came into force in 1905. तो गवर्नमेंट क्या करती है? सेपरेट करती है ईस्ट बंगाल को, which was dominated by the Muslims, and the merged it with Assam instead of separating non-Bengali areas from the province. And ये स्कीम पब्लिश होती है 1903 में और 1905 में बंगाल का पार्टीशन हो जाता है। Now the partition of Bengal was widely criticized. All sections of population rose up in opposition. लोग जो हैं धरना देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, वो चाहते थे कि बंगाल को फिर से यूनाइटेड करो। और ब्रिटिशर्स को बंगाल को उनकी बढ़ती हुई पावर देखकर, लोगों की बढ़ती हुई पावर देखकर ब्रिटिशर्स को फिर से बंगाल जो है वो एक करना पड़ता है। द नेशनल मूवमेंट इंस्टेड ऑफ वीकनिंग बिकेम मोर मास बेस्ड विद द राइज ऑफ न्यू वेज ऑफ प्रोटेस्ट लाइक स्वदेशी एंड बाइकट। स्वदेशी मूवमेंट जो है इसमें ये 1905 में जो बंगाल का पार्टीशन हुआ उसके खिलाफ लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था 7 अगस्त 1905 को। इसमें जो भी ब्रिटिश गुड्स थे, जो भी ब्रिटिशर स्कूल थे, जो भी ब्रिटिश की बनी हुई चीज़ें हैं, टेक्सटाइल मिल हैं, बैंक हैं, केमिकल वर्क है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, सबको क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। सिर्फ अपनी चीज़ें, खुद के देश की बनी हुई चीज़ें जो हैं वो लोग यूज़ करेंगे। अर्लियर क्या होता था, जो ब्रिटेन से गुड्स आते थे
थे, सामान आते थे, कपड़े आते थे, वही लोग प्रेफर करते थे क्योंकि वो सस्ते रेटों में होते थे, मशीन के बने हुए होते थे। लेकिन इस मूवमेंट में सब इंडियंस ने एकजुट होकर ये फैसला किया कि वो क्या करेंगे, जो हाउस होल्ड आइटम है, स्वदेशी घर के बने हुए, इंडिया के बने हुए जो आइटम है वो डोर टू डोर पहुंचाएंगे और हर एक लोग जो है वो स्वदेशी चीज़ों को यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, जो ब्रिटेन के जो सेल है वो कम हो जाएगी, राइट। दिस यू हैव टू नो। Rabindranath Tagore led the protest movement against partition of Bengal. On the day of the partition, people throughout Bengal tied Rakhi in each other's wrists to show their solidarity and brotherhood. और जब बंगाल का पार्टीशन होता है कि ये दिखाने के लिए कि हम सब एक हैं, लोग एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधते हैं। नेक्स्ट इज द मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट डिफरेंस। तो बच्चे क्या डिफरेंस था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में? जो मॉडरेट पीपल थे वो मॉडरेट डिमांड करते थे, ठीक है, जो रिजनेबल डिमांड होती थी कि ठीक है गवर्नमेंट को हमें रूल करना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर रहनी है, ठीक है, लेकिन इंडियन का भी हिस्सा होना चाहिए। तो वो क्या करते थे, साइन कैंपेन करते थे, पिटीशन अपील करते थे, ओके। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो स्ट्रेस करते थे, वो ब्रिटिशर्स को क्या चाहते थे, ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएं। उनका पूरा फोकस था स्वदेशी और बायकट मूवमेंट पर, ताकि हम अपने देश की बनी हुई चीज़ें यूज़ करें और ब्रिटिशर्स के गुड्स को बिल्कुल ही बायकट कर दें। और इसमें जो एडवोकेट थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल बने हुए थे, जो कोर्ट बने हुए थे, उनको भी बायकट कर दिया। फाइन। Now next phase of Indian national movement 1906 to 1916. First is Calcutta session of INC in 1906. 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक एनुअल सेशन होता है कैलकाटा में। दादा भाई नौरोजी was the president of this nation. He tried to make the moderates and the extremists agree to certain common policies. और उनकी पहल थी कि दोनों ग्रुप जो है तो इंडियन, दोनों ही अब इंडिया का भला चाहते हैं, तो उनकी सोच थी दादा भाई नौरोजी की कि दोनों को इकट्ठा किया जाए, दोनों एक हो जाएं, कुछ पॉलिसीज पर वो एग्री हो जाएं। द कांग्रेस डिक्लेयर्ड स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट एज इट्स गोल। इट डिक्लेयर्ड दैट द इंडिया मस्ट बी गवर्न्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल एंड दिस वाज अ बिग इवेंट इन द नेशनल मूवमेंट। और दोनों ही इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि इंडिया को पूर्ण स्वराज चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, जिसमें जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो होंगे, वो गवर्नमेंट बनाएंगे। फाइन। नेक्स्ट इज स्प्लिट इन द आईएनसी, सूरत सेशन। अब 1906 में दोनों इकट्ठे होते हैं, ओके। अब 1907 में जब सूरत सेशन होता है तो आईएनसी जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो दो ग्रुप में फिर से स्प्लिट हो जाती है, मॉडरेट्स और रेडिकल्स। आफ्टर द सूरत सेशन द मॉडरेट्स गॉट कंप्लीट कंट्रोल ओवर द कांग्रेस एंड द रेडिकल्स मूव्ड अवे फ्रॉम द पार्टी। The British used this display of disunity of their advantage, और इसका फायदा ब्रिटिशर्स उठाते हैं। They followed a two-pronged policy of appeasing and pacifying the moderates by giving them concessions and deterring the radicals through repressive measures। और ऐसे में वो क्या करते हैं, मॉडरेट की कुछ बातें मान लेते हैं और मॉडरेट को कहते हैं कि वो रेडिकल के खिलाफ ही रहें। Now next is formation of the Muslim League 1906. The Hindus and the Muslims had fought shoulder to shoulder during the uprising of 1857. The English committed great atrocities on the Muslims. After the revolt of 1857, Muslims जो हैं they were treated the main organizer of the revolt and discriminated against. और ब्रिटिशर्स जो हैं वो मुस्लिम्स के खिलाफ जो है काफ़ी रूल लॉ निकाल देते हैं और उनको काफ़ी बैड ट्रीट किया जाता है। Later, when the national movement gained momentum, the British began to favor the upper class Muslims. और जब जो मुस्लिम लीग जो है वो एक मूवमेंट पर आ गई, नेशनल मूवमेंट जब आता है, ठीक है, शुरू होता है, उस टाइम ब्रिटिशर्स जो हैं वो एकदम से अपर क्लास मुस्लिम्स के फेवर में आ जाती हैं। दिस वॉज डन टू ड्रॉ द मुस्लिम्स अवे फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल। और उनका मेन एम क्या था कि मुस्लिम्स को पैसिफाई करना, ताकि वो मुस्लिम्स जो हैं वो नेशनल मूवमेंट से एक तरफ हो जाएं। And the British encouraged the Muslim leaders to start organizations which would further the interest of only their own community. और ब्रिटिशर्स जो हैं वो मुस्लिम को कहते हैं कि अब अपनी कम्युनिटी का देखो ना, जो हिंदूज हैं उन्होंने 1857 का रिवोल्ट का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मुस्लिम पर डाल दी, ठीक है, तो कहते हैं, उनको पैसिफाई करते हैं कि अपनी कम्युनिटी का भला देखो।
they were told that any future government in India would consist mainly of Hindus as they were in a majority. और वो मुस्लिम्स को भड़काते हैं इंडियन के खिलाफ कि आगे जो भी इंडिया की गवर्नमेंट बनेगी उसमें मोस्टली हिंदूज ही होंगे, मुस्लिम्स नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया में मेजोरिटी जो है वो हिंदूज की ही है. So in 1906, a delegation of the Muslim leader led by Agha Khan, the religious head of a Muslim sect, and Nawab Salmiya of Dhaka met Viceroy Lord Minto with request that a separate organization for the Muslims should be formed with their aim of dividing the Indian people along religious line. और यहाँ पर दोनों रिलीजन के लोगों को डिवाइड कर दिया ब्रिटिशर्स ने, और मुस्लिम जो हैं ये डिमांड करते हैं कि हम तुम्हारा साथ देंगे लेकिन हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए. सो द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड. एक नई एसोसिएशन बनती है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, एंड इट्स ऑब्जेक्टिव वर टू बी लॉयल टू द गवर्नमेंट, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए लॉयल रहेगी ये ऑर्गेनाइजेशन और मुस्लिम्स के हक को प्रोटेक्ट करेगी और लोगों के लिए गुडविल करेगी. द ब्रिटिश डिड सक्सेस टू सम एक्सटेंट इन देयर एफर्ट टू क्रिएट अ रिलीजियस डिवाइड. अब हालांकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपने कुछ प्लान में सक्सेसफुल हो गए थे, ठीक है, रिलीजियस डिवाइड उन्होंने कर दिया था, बट दे फेल टू कम्प्लीटली स्टॉप द मुस्लिम्स फ्रॉम ज्वाइनिंग द कांग्रेस. लेकिन वो पूरे तरीके से मुस्लिम्स को कांग्रेस ज्वाइन करने से नहीं रोक पाए. मुस्लिम लीडर जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एंड मोहम्मद अली, Hakim Ajmal Khan and Majhul Haq were an important constituent of the Congress and the national movement. In the early years, even the Muslim League failed to toe the British line and adopted the attainment of self-government as its objectives. Now, Morley-Minto reforms. The British tried to appease the moderates by announcing certain political concession. जैसा कि आपने पढ़ा अभी कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो मॉडरेट को पैसिफाई करती हैं, जो उन्होंने डिमांड की थी उनको कुछ कंसेशन उनमें से दे देती है. In 1909 an act was passed on the suggestion of the Viceroy Lord Minto and the Secretary of State for India Morley. This act is known as Morley-Minto reforms or the Government of India Act of 1909. इसके अकॉर्डिंग ये एक्ट क्या था? द एक्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रोविंसेस ऑल्सो. द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ मद्रास, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, ओडिशा एंड उत्तर प्रदेश had 50, while Burma, Punjab and Assam had 30. The act provides for non-official majority and the official control was retained. Now next is Delhi Darbar. In 1911 एन इम्पीरियल दरबार वॉज हेल्ड एट दिल्ली. दिल्ली में एक दरबार लगाया जाता है. दिस दरबार वॉज अटेंडेड बाय एन इंडियन प्रिंसेस एंड बाय द ब्रिटिश किंग जॉर्ज V एंड हिज क्वीन. टू इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट वर मेड एट द दरबार. और ये दिल्ली में जो दरबार लगता है इसको ब्रिटिश किंग ने भी अटेंड किया, जॉर्ज V और उसकी क्वीन ने, और बहुत सारे इंडियन प्रिंस जो हैं वो इसको अटेंड करते हैं. इस दरबार में क्या अनाउंसमेंट होती हैं? फर्स्ट, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज कैंसल्ड, कि जो बंगाल का पार्टीशन किया है 1905 में उसको कैंसिल कर दिया गया. एंड द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज. Now the repressive measures of the government against the anti-partition movement and the extremists resulted in growth of revolutionary activities. अब जो क्रांतिकारी थे, जो रेवोल्यूशनरी थे, वो उनकी एक्टिविटीज़ तो चल ही रही थी. द यंग ब्रीड ऑफ रेवोल्यूशनरीज फेल्ट दैट पैसिव रेजिस्टेंस वुड नॉट ब्रिंग एनी सक्सेस एंड द ब्रिटिश शुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम इंडिया बाय फोर्स. और एक्सट्रीमिस्ट का क्या कहना था? रेवोल्यूशनरीज चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाना ही होगा, इनकी कोई पॉलिसी डिवाइड ये कर रहे हैं फिर उस डिवाइड को कैंसिल कर रहे हैं, हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, हमें ब्रिटिशर्स को इंडिया से आउटसाइड फेंकना है, एक्सपेल करना है. फाइन. The methods of the revolutionaries were entirely different from those of the extremists and the moderates. अब revolutionaries जो थे वो एक थर्ड पार्टी थी, ठीक है, उनके मेथड जो हैं वो काफ़ी अलग थे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट से. They were inspired by an intense love for the motherland and were spread by enthusiasm to wrest freedom quickly from the hands of the foreigners by violent means. वो क्या, उन्हें अपने मातृ देश से, ठीक है, उन्हें अपनी भारत माता से बहुत ही प्यार था और उसके लिए, उसको आज़ाद करने के लिए वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने को भी तैयार थे और उन्होंने वायलेंट मीन्स जो हैं वो चूज़ किए
ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने के लिए। दे फॉर्म्ड सेक्रेट सोसाइटीज, मैन्युफैक्चर्ड बॉम्ब्स एंड अदर आर्म्स एंड imported them from foreign countries whenever possible. They were involved in the assassination of the unpopular British officials, propagated revolutionary ideas through newspapers, books and pamphlets, and engaged themselves in activities to collect money for this purpose. They were influenced by revolutionary movements for freedom in Italy, Ireland and Russia. रशिया में जो मूवमेंट हुई थी, फ्रीडम मूवमेंट, इटली, आयरलैंड और रशिया में, उससे रेवोल्यूशनरीज जो थे वो काफ़ी इंस्पायर थे और उन्होंने वायलेंट मीन को चूज़ किया। वो अपनी चीज़ों को ब्रिटिशर्स के खिलाफ ओपनली न्यूज़पेपर में लिखते थे, बुक में लिखते थे, पैम्फलेट में लिखते थे, ताकि और भी लोग जो हैं रेवोल्यूशनरीज में शामिल हों। The revolutionaries did not try to generate a mass revolution which remained their primary weakness. हालांकि इन्होंने इतनी कोशिश नहीं की लोगों को रेवोल्यूशन में जोड़ने के लिए, इसीलिए ये थोड़े से वीक पड़ गए। Instead, they chose to assassinate officials and attempted armed uprising by chosen few with the help of Indian soldiers if possible. Next is national movement during the First World War. The First World War began in 1914. Between 1914 to 1918, the national movement in India strengthened. Now, the British used Indian soldiers and resources to fight the war. The Indian leaders hoped that if they extended support to British during the war, उनकी जो डिमांड है वो ग्रांट हो जाएंगी वॉर ख़त्म होने के बाद। इसीलिए जो इंडियन लीडर हैं वो ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं वर्ल्ड वॉर 1 में। Meanwhile, the Home Rule movement began, which was led by Bal Gangadhar Tilak. Tilak formed the Home Rule League, and soon Anyan Besant, who had founded the Theosophical Society, also joining the movement. The Home Rule movement spread all over India, demanding self-government. Now, next is the Lucknow Pact, 1916. In 1916, the moderates and the extremists united at the Lucknow session of the Congress. 1916 में जब लखनऊ में सेशन होता है तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो दोनों यूनाइटेड हो जाते हैं, and at the same time the Congress and the Muslim League signed the Lucknow Pact. They demanded self-government of India and although based on separate electorates, and these developments strengthened the national movement. अब लखनऊ में डिमांड की गई, उन्होंने एक पिटीशन साइन किया, डिमांड जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रखी कि हमें जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए और हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। नाउ गांधी एंड द फ्रीडम मूवमेंट। Mohandas Karamchand Gandhi arrived in India from South Africa in 1915 and became the leader of the masses. His prior experiences of South Africa leading Indians in non-violent marches against racist restrictions had made him an international leader. He had used his two weapons, सत्याग्रह and non-violence. जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने ब्लैक पीपल के साथ मिलकर वाइट पीपल के अगेंस्ट जो है वो एक रूल बनवाया था, तो उसको उसी से इंस्पायर होकर वो इंडिया में एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। उनके दो हथियार थे जो उनका इंटरनेशनल लीडर बनने में बहुत बड़ा योगदान रहा। ठीक है, उनके दो हथियार थे, सत्याग्रह दैट इज फाइट फॉर ट्रूथ अगेंस्ट इनजस्टिस, और नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, नॉन इंजरी टू एनीवन, टू विन द विक्ट्रीज फॉर द इंडियंस। द सेम वेपन्स he used in India too in winning freedom for the nation. Among the Congress leaders and reformers, Gopal Krishan Gokhale was probably the one who influenced him most. Gandhiji regarded Gokhale his ideal and teacher. Initially, when he came to India, he travelled throughout the country by train ताकि वो लोगों की स्थिति जो है, सिचुएशन जो है वो समझ सके, उनकी प्रॉब्लम समझ सके। He led the local movements in Champaran for the indigo planters, in Kheda for the peasants, and in Ahmedabad for the meal workers. He won the rights for the people in all the three places and enlisted supporters like वल्लभ भाई पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद। इन तीनों ही जगह पर वहाँ के लोगों के लिए उन्होंने राइट वोन किए, ठीक है, उनको राइट दिलाए, और इसीलिए उनको बहुत सारे सपोर्टर भी वहाँ से मिलते हैं जैसे कि वल्लभ भाई पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद। नाउ नेशनल मूवमेंट आफ्टर 1919, फर्स्ट इज Montague-Chelmsford reforms, 1919. The Indian leaders had supported the British in the First World War, hoping that their demands would be met after the war was over. To pacify the demands of the Congress, the British passed the Government of India Act in 1919, also known as
Montague-Chelmsford reforms, as the act was formulated by the Secretary of State of India Montague and Indian Viceroy Lord Chelmsford, and the act introduced a number of changes in the central and provincial legislature. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो ब्रिटिशर्स एक नया एक्ट शुरू करते हैं. उस एक्ट में क्या क्या लिखा था? फर्स्ट, the Central Legislative Council was made bicameral, that is, it would consist of two houses, Imperial Legislative Assembly and the Council of States. Elected members now formed the majority in both the houses. No significant changes was made in the power of these houses. The system of diarchy or dual government was introduced in the provinces. The state subjects were divided into two, reserved and transferred. All the important subjects like finance, police, etc. were placed in the reserved list. They were under the control of the governor and his councils. उसके बाद जो लेस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे वो इंडियन के लिए छोड़ दिए गए, जैसे कि एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स हु वर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. रियल पावर अब भी किसके हाथ में थी? ब्रिटिश ऑफिशियल्स के हाथ में, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, रिजर्व लिस्ट थी, उसके ऑनर कौन थे? ब्रिटिशर्स. राइट. नाउ नेक्स्ट इज रोवेल्ट एक्ट. The Indians were not at all satisfied with the Montague-Chelmsford reforms and they felt discontent and unhappy. This feeling of disillusion led to protest movement all over the country. To control the growing restlessness, the British passed the Royal Act in 1919. अब जो ये एक्ट आया था, ठीक है, कुछ कंसेशन दे दी थी वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन लोग जो हैं उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है उनकी मूवमेंट बढ़ती ही जा रही थी. इसलिए ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया, रोवेल्ट एक्ट 1919. ओके, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, दिस यू हैव टू नो. Today in India, a person cannot be arrested without being given a reason for it, and she has the right to be brought in front of the nearest and magistrate within 24 hours. अब जो है इंडिया में कोई भी किसी को बिना किसी वारंट के, बिना किसी रीज़न के अरेस्ट नहीं कर सकता. अगर किसी को अरेस्ट किया है तो विदिन 24 आवर्स नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना होगा. ठीक है, लेकिन इसके ऑपोजिट था रोवेल्ट एक्ट में. तो रोवेल्ट एक्ट क्या कहता है? दैट द पीपल वेयर द वुड बी नो प्रोविजन फॉर राइट टू अपील, कि बिना किसी मतलब के किसी को भी अरेस्ट कर सकती है गवर्नमेंट जो है. दिस मेंट दैट द अरेस्टेड पर्सन वाज नॉट गिवन द राइट टू अपील, और जो अरेस्टेड पर्सन है वो कहीं भी अपील नहीं कर सकता. इट मीन्स नो अपील, नो दलील एंड नो वकील. दिस वाज इन डायरेक्ट contravention of democratic principles and further aroused the anger of people and increased the unrest in the country. और इसके साथ साथ एक जलियांवाला बाग मैस्केयर हुआ. यहाँ पर रोवेल्ट एक्ट के अगेंस्ट जो हैं बहुत सारे लोग जो हैं, एक ग्रुप है वो 30 मार्च 1919 को इकट्ठा हुआ था, हड़ताल कर रहे थे लोग. ठीक है, सो द गवर्नमेंट अडॉप्टेड मेजर्स लाइक ब्रेकिंग ऑफ प्रोसेशंस एंड मीटिंग, लाठी चार्ज एंड इवन ओपनिंग फायर एट डिफरेंट प्लेसेस, इम्प्रिजनमेंट एंड डिपोर्टेशन ऑफ द पॉलिटिकल लीडर एंड टू सप्रेस द मूवमेंट क्विकली. तो नेशनल मूवमेंट जो थी वो कहीं से भी नहीं रुक रही थी और ब्रिटिशर्स जो है लाठी चार्ज कर रहे थे. ठीक है, गोलियां चला रहे थे उनके अगेंस्ट. लीडर्स जो हैं उनको इम्प्रिजन किया जा रहा था. तो ऐसा ही एक मूवमेंट होता है जलियांवाला बाग, जहाँ पर पंजाब जो है, पंजाब में लोग इकट्ठे हुए थे ऑन 10 अप्रैल. ओके, सो on the same day, a peaceful procession in Amritsar was fired upon. In protest, the people held a meeting in Jallianwala Bagh on 13 April 1919. 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में यही चीज़ें डिस्कस करने के लिए एक पीसफुल मीटिंग हो रही थी, जहां पर जनरल डायर जो है वो अपने ट्रूप को ऑर्डर देता है फायरिंग के. 100 ऑफ पीपल वहां पर मारे जाते हैं, 1000 जो हैं वो जख्मी हो जाते हैं. हर तरीके से हर आसपास में पूरी कंट्री में हॉरर एंड इंडाइग्नेशन की एक लहर आ जाती है. सब लोग घबरा जाते हैं और इवन ये जो एक्ट था ये इतना ब्रूचुअल था कि इसको क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो है सीधा वहाँ पर रेफ़र किया गया.
Rabindranath Tagore surrendered the knighthood and the honorary title which was conferred upon him by the Queen of England. Gandhiji returned the Kesar-e-Hind medal given to him for his services during Boer War. और जो भी लीडर्स को टाइटल दिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने, वो लोग वापस कर देते हैं। और इस इंसिडेंट की कंट्री इंडिया के अलावा बाहर की कंट्रीज़ ने भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। Now here is a case study about the Khilafat movement and non-cooperation movement. First we will discuss Khilafat movement in 1920. The growing discontent against the British led to the launching of the Khilafat movement, which was organized by Ali brothers, Muhammad Ali and Shaukat Ali, in protest against the injustice done to Turkey, which had fought against Britain after the First World War. Turkey was important for the Indian Muslims, as the Sultan of Turkey was also the Khalif or Khalifa and was the head of the Muslims throughout the world. Khilafat leader जो हैं, they put pressure on the British government to give better treatment to Turkey. Through this demand, Muslims were drawn into the national movement in large number. This movement became a part of the national movement and the Congress leaders joined the agitation and popularized it. Next is non-cooperation movement from 1920 to 1922. Angered by the rigid attitude of the British, the Congress decided to start the non-cooperation movement under the leadership of Gandhiji. Gandhiji urged Indians not to cooperate with the British. The movement aimed at protesting against British repression in Punjab and their policy towards Turkey. It was also for the attainment of Swaraj. और ये movement जो है ये large number पर हुई, ठीक है, was launched in stages. It started with the giving up of honorary title. पहले जितने भी इंडियन लीडर थे जिनको honorary title मिले थे सब ने वापस कर दिए। उसके बाद बाइकट किया स्कूल, कॉलेज, लॉ, कोर्ट, इलेक्शंस को, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि जामिया मिलिया एट अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ, बनारस वर स्टार्टेड। ये इंडियन इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटी जो हैं ये स्टार्ट की नेशनल लीडर्स ने। एंड फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न्ड एंड स्ट्राइक्स एंड हड़ताल्स वर ऑर्गेनाइज्ड। इंडियंस वर आस्क्ड नॉट टू पे टैक्सेस, नॉट टू वर्क फॉर द ब्रिटिश एंड नॉट टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, कि इंडियन जो हैं वो पीसफुली ब्रिटिशर्स की कोई भी बात नहीं मानेंगे। Along with boycott and non-cooperation, a constructive program was also launched. It included the popularization of the charkha and khadi, promotion of the Hindu-Muslim unity, abolition of untouchability and the spread of education. Emphasis on these popular issues made the movement a mass movement. The movement was a great success. Thousands of people willingly went to jail और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस मूवमेंट के कारण जेल में गए और इस मूवमेंट को बहुत ही अच्छी सक्सेस मिली। एट द कांग्रेस सेशन एट अहमदाबाद इन 1921 इट वाज डिसाइडेड दैट द लास्ट स्टेज ऑफ द मूवमेंट वुड एम्फसाइज ऑन नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, thereby defying the right of the British government to rule over India. This plan, however, could not be implemented due to the outbreak of violence at चोरी चौरा। लेकिन ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है बीच में ही बंद करनी पड़ी जब चोरी चौरा में एक इंसिडेंट हुआ, जब रेवोल्यूशनरीज ने एक पुलिस बिल्डिंग को बम से उड़ा दिया था जिसमें 22 पुलिसमैन जो हैं वो मारे गए थे। गांधी जी शॉक हो गए इस इंसिडेंट से एंड ही आस्क्ड द मूवमेंट टू स्टॉप इन 1922. द नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग दीज ईयर्स टर्न्ड इनटू अ पॉपुलर मूवमेंट largely due to the efforts of Gandhi ji. The methods he advocated were so simple that even the common people could follow them. Despite being simple, these methods were so effective that the British had no answer to them. और ये मेथड जो है ये इतने सिंपल थे कि सब लोग इसको फॉलो कर पा रहे थे और दूसरा ब्रिटिशर्स के पास इनका कोई आंसर नहीं था। तो इंडिया को आज़ाद कराने में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो उस स्ट्रगल की बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट मानी जाती है। सो पॉइंट्स टू रिमेंबर, the idea of nationhood started taking roots in India due to many reasons and the growth of British rule was one of the important reasons. New political formations started to come into being during the end of 19th century. The Indian National Congress was formed in 1885 and was composed of English educated elite of the time. During the moderate phase of Congress, the mass demand from the leaders was to have a say in the government, some policies which could benefit Indians.
Bengal was partitioned in 1905 and this created huge protest, especially in Bengal. Gandhiji arrived in India in 1915 and started a series of mass movements. The non-cooperation movement further entrenched the roots of movement against foreign rule. This is the chapter, बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.